Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. You're watching Law by Nilay Kumar, and we're starting with our CLAT PG 2027 series. So, in today's video, we'll be discussing removal of judges. जैसा CLAT PG में आपको पता है कि they can ask you any question. The CLAT PG is a very unpredictable exam. They can ask you any questions, but obviously they're related to recent happenings and recent events that are happening around the world, right? For instance, I have taken this topic because constitutional law में काफ़ी important instance अभी हुआ था जो हम आगे देखेंगे. जस्टिस यशवंत वर्मा हैज़ रिजाइंड, राइट? तो उसके बारे में अभी हम इस वीडियो में देखेंगे कि रिमूवल ऑफ जजेस का क्या प्रोसेस होता है, राइट? सो बिफोर आई स्टार्ट विद द वीडियो आई वुड लाइक टू शेयर विद यू ऑल वन थिंग दैट I am starting CLAT PG 2027 batch. It will be an online batch, right? It will be an online batch, and most interestingly, what will happen is you're going to get live lectures, right? You're going to get live lectures. हर लेक्चर का रिकॉर्डिंग आपको मिलेगा, प्लस आपको एज रिक्वायर्ड आपको नोट्स मिलेंगे, राइट? वट एवर आई एम शोइंग यू, शो केसिंग और प्रेजेंटिंग इन द क्लास, आपको उसका PDF मिलेगा विच इज़ डाउनलोडेबल एंड डेफिनेटली प्रिंटेबल, right? Along with that, we'll be doing previous year questions as well. So after every few class, what I'll do is I have planned that we're going to discuss previous year questions. It can be either subject wise, or what we can do is we can discuss the entire previous year paper, right? Because 2020 से लेके 2026 तक की हमारे पास पेपर्स अवेलेबल हैं अभी, एंड दैट इज़ ऑल्सो वॉट्स इंपॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज उसके पहले के पेपर्स हमारे लिए डिफरेंट फॉर्मेट में थे, डिफरेंट उनका सिलेबस था एंड क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट था, राइट? सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन डिस्कस दैट. Along with that, we're gonna have weekly quizzes like Monday to Friday if we're having live lectures. Every Saturday, we're going to have a quiz on that, which you can attempt at any time throughout the day. And on Sunday, I'm going to give the answers to that. So whatever doubts you have, we can come up with the next class. We can discuss that in the next class, right? And most importantly, most of the coaching centers, the big coaching centers, are going to charge you thousands and thousands of rupees, sometimes even lakhs of rupees, for just 6 months of preparation. But what I am giving you is at very affordable fees. You can connect with me, right? You can just text me on my WhatsApp. Here's the number. You can text me on my WhatsApp, or you can reach out to me either on my Instagram or my email ID as well, right? You can enroll it. When I'm going to start, I'm going to start this on 10th June of 2026. हमारा टारगेट क्या रहेगा? CLAT PG 2027 which is usually held in the month of December. So 2026 के 10th December के अराउंड यूजुअली ऐसे ही रहता है. तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 6 मंथ्स होंगे, एंड इन 6 मंथ्स में आप और मैं साथ मिलकर प्रिपरेशन करेंगे, right? So if you want to join this, and it's going to be very small batch, right? अभी आप एक स्टूडेंट भी रहो, दो स्टूडेंट भी रहो, आई एम गोइंग टू टीच एवरीवन इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि मेरा बैच पूरा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, राइट? अगर एक स्टूडेंट भी होगा तो आई एम गोइंग टू टीच. सो दिस इज समथिंग दैट आई एम स्टार्टिंग ऑन 10th of June, राइट? फी स्ट्रक्चर और क्लासेस का स्केड्यूल क्या रहेगा, सारी चीज़ें हम डिस्कस कर सकते हैं. यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन अ कॉल, ऑन अ गूगल मीट, वट एवर फील्स कंफर्टेबल टू यू, राइट? सो I am hoping that you guys will join if you are preparing for CLAT PG. And don't forget that CLAT PG सिर्फ और सिर्फ LLM के लिए नहीं होता है. CLAT PG और भी एग्जामिनेशन जैसे JAG के लिए आप दे सकते हो, राइट? उनके लिए इम्पॉर्टेंट होता है. और अगर आपको PSUs में जॉब लैंड करना है, देन यू कैन स्कोर गुड and get a job interview at any of the PSUs, right? So this is a great opportunity for you all. Affordable fees है, सारी चीज़ें हैं, and you have lots and lots of resources. I have myself cracked CLAT PG 2024, sorry, and I have studied from a national university as well. So I have the experience definitely, and बाकी तो आपको मेरे बारे में पता ही है, and definitely you have lots of videos here. जो वीडियो अभी आप देख रहे हो, इस तरह की क्लासेस भी हम CLAT PG 2027 के बैच में करेंगे, ठीक है? सो आई एम गोइंग टू रिलीज अनदर वीडियो जहाँ पे ओरिएंटेशन की बात करूँगा मैं, कि हमारी क्लासेस कैसे चलेंगी, क्या क्या चीज़ें पढ़नी होती है, हमारी क्या स्ट्रैटेजी होती है, ठीक है? सो आई एम गोइंग टू रिलीज दैट ऑल्सो.
So stay tuned, and without further ado, let's start with the process of removal of judges. ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं. सो व्हाट हैज हैपेंड एज रिसेंटली जस्टिस यशवंत वर्मा, ना, हु इज जस्टिस यशवंत वर्मा? ही वाज अ जज, he was a judge at where? Delhi High Court. ठीक है, he was a judge at Delhi High Court, and what happened that in his official residence, ठीक है, in his official residence, a fire was caught. It was some kind of outhouse में आग लगी थी. And what happened was, when the fire tenders came, right, and they attended the fire incident, what happened? They found a lot of half burnt cash, right? They found a lot of half burnt cash. अब वो cash, they were basically unaccounted for. Justice Yashwant Verma and his family denied any allegations, and they said that the cash did not belong to them. So ये हुआ था, and this started the controversy कि ये cash आया कहाँ से. ठीक है, सो व्हाट हैपेंड वाज, ये कैश कहाँ आया, और उसके बाद फिर जस्टिस यशवंत वर्मा को ट्रांसफ़र कर दिया गया टू बैक टू हिज पेरेंट हाई कोर्ट, दैट इज़ इलाहाबाद हाई कोर्ट. उनको इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफ़र कर दिया गया था. वहाँ पे उन्हें ऑर्डर दिया गया कि दैट ही विल नॉट बी गिवन एनी जुडिशियल वर्क, ही विल जस्ट बी पोस्टेड देयर एज अ जज, राइट. एंड उसके बाद इंक्वायरीज वगैरह शुरू हुई थी, एंड इट वॉज फाउंड दैट जस्टिस यशवंत वर्मा इज़ गिल्टी of corruption basically, and misrepresentation and all those things. So ये सारी चीज़ें हुई, and यशवंत वर्मा के अगेंस्ट impeachment procedure, जो removal procedure जो है वो चल रहा था पार्लियामेंट में, and in the middle of that he decided to resign. So last month, that is on 9th of April, he resigned from the post of judge at the Allahabad High Court. He had tendered his resignation. Right, you can see I have written the facts here, you can read this out. Now, within a week, the Chief Justice of India had constituted an in-house committee comprising of Justice Sheel Nagu, Justice G.S. Sandhawalia, and Justice Anu Sivaram. ठीक है, Sivaraman. Apologies. CJ Khanna then wrote to the President of India and Prime Minister recommending removal after Justice Verma himself refused to resign. ठीक है, अब बेसिकली इस वीडियो में हमें ये समझना है कि व्हाट इज़ दिस रिमूवल प्रोसीजर एंड व्हाट इज़ दिस इन हाउस प्रोसीजर. सो बेसिकली मैं आपको दो चीज़ें बताता हूँ. एक हमारा होता है रिमूवल प्रोसीजर. ठीक है, ये जो रिमूवल प्रोसीजर है ये कहाँ पे दे रखा है? ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है, आर्टिकल 124 क्लॉज 4 and 5 में. ठीक है, आर्टिकल 124 क्लॉज 4 में बेसिकली दे रखा है. और जो इन हाउस प्रोसीजर है, ठीक है, दिस इज़ एन इन हाउस प्रोसीजर, मतलब जुडिशरी खुद एक इंक्वायरी कमेटी बैठा सकती है. और ये जो है दिस हैज़ कम अप फ्रॉम अ सुप्रीम कोर्ट केस इटसेल्फ. तो द सुप्रीम कोर्ट हैज़ इटसेल्फ कम अप विद एन इन हाउस प्रोसीजर, बट देयर वर लॉट्स ऑफ लैप्सेस इन दैट इन हाउस प्रोसीजर, बिकॉज इन हाउस प्रोसीजर की कोई वैलिडिटी नहीं थी. इट वॉज समथिंग जहाँ पे आपको क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका नहीं मिलेगा, आपको अपना डिफेंस प्रेजेंट करने का मौका नहीं मिलेगा. ठीक है, सो अगर जस्टिस यशवंत वर्मा के अगेंस्ट इन हाउस प्रोसीजर जैसे इनिशिएट हुआ था, ठीक है, ही डिड नॉट हैव द राइट. अगर कमिटी चाहती तो उनको वो डिफेंस का मौका दे सकती थी, बट इट इज़ नॉट कंपल्सरी. सो बेसिकली क्या हो रहा है, वैसे ही सिचुएशंस में इट वाज डिस्कस, इट हैज़ बीन डिस्कस इन लॉट ऑफ सुप्रीम कोर्ट केसेस, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, बट बेसिकली प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, राइट, दैट यू हैव अ राइट टू डिफेंड योर सेल्फ, यू हैव अ राइट टू बी हर्ड, वो सारी चीज़ें इस इन हाउस प्रोसीजर में वायलेट होती है. इसीलिए इस इन हाउस प्रोसीजर को बहुत इफ़ेक्टिव नहीं माना जाता है. राइट, लेट अस नाउ मूव ऑन टू आर्टिकल 124 क्लॉज 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. क्या बोलता है ये, ज़रा देखते हैं फटाफट. अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस एक्सेप्ट बाय एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट. सबसे पहली चीज़, इट हैज़ टू बी एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया after an address by each house of the parliament. ठीक है, it has to be both the houses. So it can be initiated in either of the houses, either the Lok Sabha or the Rajya Sabha, doesn't matter. But the point is that the resolution has to be passed by both the houses of the parliament, and then an order of the president has to be passed for the removal of that particular Supreme Court judge. ठीक है, अभी हम सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जज की बात कर रहे हैं.
हाई कोर्ट जज कैसे रिमूव होता है अभी थोड़ी देर में आपको पता चलेगा, ठीक है। आफ्टर एन एड्रेस ऑफ ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट सपोर्टेड बाय अ majority of the total membership of that house and by a majority of not less than 2/3 of the members of that house present and voting. This is also very important. इसको हम बोलते हैं स्पेशल मेजॉरिटी, इसको हम स्पेशल मेजॉरिटी भी बोलते हैं। स्पेशल मेजॉरिटी आपको आर्टिकल 368 दैट इज इट टॉक्स अबाउट अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ पे भी आपको आर्टिकल 368 में स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है। प्लस अगर आप आर्टिकल 368 में कुछ ऐसे प्रोविजंस या चैप्टर्स में अमेंडमेंट कर रहे हैं जो आर्टिकल 368 में पर्टिकुलरली एग्जॉस्टिवली मैंशनड है, देन इट हैज़ टू बी passed by at least 1/2 of the state legislatures as well, ठीक है। तो भाई additional majority आपको चाहिए, राइट। These are basically those chapters जहाँ पे फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट में चेंजेस आ रहे हैं, फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट को आप अमेंड करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। कमिंग बैक टू आर्टिकल 124, तो बेसिकली क्या चाहिए आपको, मेजॉरिटी ऑफ द टोटल हाउस चाहिए प्लस 2/3 ऑफ द मेजॉरिटी चाहिए ऑफ नंबर ऑफ द मेंबर्स हु आर प्रेजेंट एंड वोटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चंस ट्विस्ट हो सकते हैं। नाउ द थिंग इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में अगर आप देखोगे तो क्वेश्चंस बहुत घुमा फिरा के पूछ लेते और बहुत ही इंट्रीग, बहुत इतना छोटा सा चीज़ पूछ लेंगे दैट वो हमारे दिमाग से निकल जाता है, ठीक है। अब आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इज इट 2/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स और 2/3 ऑफ द मेंबर्स हु आर प्रेजेंट और 2/3 ऑफ द मेंबर्स हु आर वोटिंग और 2/3 ऑफ द मेंबर्स हु आर प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इट इज़ present and voting because the members of the parliament also have the option to abstain from voting, ठीक है। So it has to be passed by both the house of the parliament by a special majority and has been presented to the president। अब ये भी देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने वो रेजोल्यूशन दोनों हाउसेस में पास कर लिया, उसके बाद दोनों हाउसेस को सेम सेशन में उस सेम सेशन में रिमूवल के लिए प्रेसिडेंट को वो ऑर्डर या वो रेजोल्यूशन प्रेजेंट कर, और नॉट ऑर्डर प्रेसिडेंट पास करते हैं, रेजोल्यूशन हाउस प्रेजेंट करता है, ठीक है। आर्टिकल 124 क्लॉज 4 में आपको सुप्रीम कोर्ट जज का रिमूवल कैसे होता है ये बात दे रखी है। अब 124 क्लॉज 5 क्या बोलता है जरा देखते हैं। Parliament may by law regulate the procedure for the presentation of an address and for the investigation and proof of the misbehavior or incapacity of a judge, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपको मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी दे रखा है। सो दीज आर द 2 grounds ऑन विच द रिमूवल ऑफ अ जज कैन हैपन, ठीक है। इंटरेस्टिंगली मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी क्या होता है, दिस हैज नॉट बीन डिफाइंड आइदर इन द कॉन्स्टिट्यूशन और एनी अदर स्टैट्यूट्स, ठीक है। यूजुअली क्या होता है, अगर कोई वर्ड डिफाइन नहीं मिलता है हमें किसी स्टैट्यूट में इंक्लूडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, तो हम किसको रेफर करते हैं, हम जनरल क्लॉजेस एक्ट को रेफर करते हैं। लेकिन जनरल क्लॉजेस एक्ट में भी ये डिफाइन नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के कुछ प्रीवियस जजमेंट है जहाँ पे उन्होंने मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी को डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। इनकैपेसिटी का बेसिकली मतलब हो गया, मान लो मैं सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट होता हूँ, आफ्टर दैट आफ्टर सम टाइम आई बिकम इनसेन, ठीक है, या फिर मुझे कोई ऐसी बीमारी हो जाती है जिसके कारण I am not able to fulfill my duties as a judge of the Supreme Court of India. In that case, I am incapacitated, right? I do not have the capacity to perform the duties of a Supreme Court judge. In that case, मेरे against removal का process initiate किया जा सकता है, ठीक है। दूसरा क्या है, misbehavior. Justice यशवंत वर्मा के केस में it was misbehavior because it was something which was against the principles that needs to be followed by a judge. राइट, यू नीड फॉर अ जज, हमारी बेसिक इंस्टीट्यूशन मतलब जुडिशरी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन और उसकी कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो जज को फॉलो करना होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली अनबायस्ड, आपको जस्टिस देने के लिए आपको अनबायस्ड होना पड़ेगा, और उसके लिए क्या है, जब आपके अगेंस्ट ऐसे एविडेंसेस दिखने के, ऐसे एविडेंसेस आपके ऑफिशियल रेजिडेंस में within your residence, even though वो out house में था, even though that was not inside your home, but it was within your official residence inside the campus, and there were lot of half burnt cash were found, right? So that basically tells that you are corrupt, you are taking money for
फॉर गॉड नोज वॉट, बट यू आर टेकिंग मनी, यू आर टेकिंग मनी फॉर समथिंग जिसके लिए आपको पैसे ऐसे छुपाने पड़े, विच मीन्स इट्स ब्लैक मनी, राइट? तो दैट इज मिसबिहेवियर, करप्शन, ठीक है, बीइंग बायर्स, दीज आर ऑल मिसबिहेवियर, ठीक है। आपके अगेंस्ट कोई सेक्सुअल मिसकॉन्डक्ट के एलिगेशंस आ रहे हैं, दैट इज ऑल मिसबिहेवियर, ठीक है। सो देर आर 2 ग्राउंड्स फॉर रिमूवल। रिमूवल का प्रोसेस यहाँ पे 124 क्लॉज 4 में दे रखा है। और इसके अलावा अभी हम एक और एक्ट देखेंगे, दैट इज जजेस इंक्वायरी एक्ट, ठीक है। वहाँ पे भी इसको डिटेल में डिस्कस किया गया कि जजेस के अगेंस्ट इंक्वायरी कैसे बैठ सकती है। यहाँ पे प्रोसेस बताया, वहाँ पे इंक्वायरी का प्रोसेस बताया, ठीक है। लेट अस नाउ कम टू आर्टिकल 218 दैट टॉक्स अबाउट हाई कोर्ट जजेस का रिमूवल कैसे होगा। तो इन्होंने बेसिकली ये बोल दिया है कि आर्टिकल 124 क्लॉज 4 एंड 5 में जो दे रखा है दैट विल अप्लाई टू हाई कोर्ट जजेस एज वेल। सो बेसिकली हाई कोर्ट जज एंड सुप्रीम कोर्ट जज दोनों का रिमूवल सेम प्रोसेस से होगा, विच इज गिवन इन आर्टिकल 124 क्लॉज 4 एंड 5, ठीक है। एक्चुअली क्लॉज 4 में, क्लॉज 5 में पार्लियामेंट को पावर दी गई कि वो इन्वेस्टिगेशन एंड इंक्वायरी रिलेटेड लॉज बना सकती है, और इसी के तहत, ठीक है, इसी के अंदर हमारा जजेस इंक्वायरी एक्ट बना है, ठीक है। ये हमारा जजेस इंक्वायरी एक्ट बना है, जो भी हम देखेंगे, राइट। नाउ सी, दिस इज द जजेस इंक्वायरी एक्ट जो बनाया गया है। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं ज़रा देखते हैं। अब सेक्शन 3 सबसे इंपॉर्टेंट है एंड सेक्शन 6 सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 2 सेक्शंस बेसिकली हम देखने वाले हैं। लेट अस सी सेक्शन 3 क्या बोलता है। सबसे पहले ज़रा देख लें भाई ये चीज़, शॉर्ट टाइटल, राइट। जजेस इंक्वायरी एक्ट ऑफ 1968, इनैक्टमेंट डेट क्या है इसका, 5 दिसंबर 1968, ठीक है। ये सर्कल नहीं हो रहा है। इट शैल कम इन टू फोर्स ऑन सच डेट, कौन से डेट को आया है, 1 जनवरी 1969, 1 जनवरी 1969, ये इसका इन्फोर्समेंट डेट है। यूजुअली इन्फोर्समेंट डेट ही पूछा जाता है बहुत सारे एक्ट्स में। आई एम अगेन सेइंग क्लैट पीजी बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल एग्ज़ाम है, तो उसमें कुछ भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। बट ऑब्वियसली देर आर सर्टेन क्वेश्चन विच आर नॉट मेंट टू बी अटेम्प्टेड, ठीक है। आप ये याद रखिएगा कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो ऑब्वियसली देर आर सर्टेन क्वेश्चन विच आर नॉट मेंट टू बी अटेम्प्टेड, ठीक है। देर हैव बीन एन इंस्टेंस, आई रिमेंबर, आई थिंक 2023 का क्वेश्चन पेपर था जहाँ पे एक जजमेंट का साइटेशन पूछा गया था। इफ़ आई एम करेक्ट इट वाज सबरीमाला जजमेंट और इट वाज KS पुट्टा स्वामी जजमेंट, राइट टू प्रिवेसी वाला। उस जजमेंट का साइटेशन पूछा गया था। देर वॉज अनदर इंस्टेंस जहाँ पे, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का साइटेशन पूछा गया था। साइटेशन नॉट एज इन जस्ट ईयर, एज इन SCC में कौन से वॉल्यूम में कौन से पेज नंबर पे उसको साइट किया गया है, वो पूछा गया, ठीक है। तो these are certain questions which are meant to be not attempted. So you need not spend your energy on something which are beyond your control. ठीक है, आप हर जजमेंट के साइटेशंस नहीं याद रख सकते, बट आप जजमेंट के ईयर्स याद रख सकते हो। अगर आप 20 जजमेंट्स के ईयर याद रखते हो तो शायद आपको 15 याद रहेंगे, ठीक है। देयर हैव बीन लॉट ऑफ इंस्टेंसेस जहाँ पे जजमेंट के ईयर्स पूछे गए हैं, ठीक है। कभी कदार मैच द फॉलोइंग में पूछ लिया जाता है, ये जजमेंट कौन से ईयर में आया था, मैच करो कॉलम 1 से कॉलम 2 में, ठीक है। कभी कदार ऐसा हुआ है कि अरेंज करने को बोल दिया गया, बट यूजुअली नहीं पूछते हैं ईयर वाइज, ठीक है। आपको पैसेजेस दिए जाते हैं, तो उन पैसेजेस में से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। अगर 5 क्वेश्चन आए एक पैसेज से, 4 क्वेश्चंस आपके लीगल नॉलेज पे बेस्ड होगा कि आप पहले से क्या पढ़ के आए हो, ठीक है। 1 या 2 क्वेश्चन, अप्रॉक्सीमेटली 1-2 क्वेश्चन रहते हैं जो आपका उस जजमेंट से रिलेटेड होता है। उसका आंसर या तो आपको उस पैसेज में मिलेगा या फिर वो ऐसा आंसर होगा, ऐसा क्वेश्चन होगा, अगर आपने जजमेंट पढ़ा है तो आपको क्लियर होगा, ठीक है। दिस इज अ रीज़न कि मैं ये रिमूवल ऑफ जजेस, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक नाउ, ठीक है। रिमूवल ऑफ जजेस जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन गया बिकॉज ऑफ दिस जस्टिस यशवंत वर्मा इंसिडेंट, इसलिए हम इसके सारे एस्पेक्ट्स को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं,
ठीक है, बट ऑब्वियसली परफेक्शन रीच करना आपका एम नहीं होना चाहिए, ठीक है, परफेक्शन रीच नहीं करना है, हमें क्या करना है, हमें जितना पॉसिबल है उतने तरीके से एक टॉपिक को कवर करना है, रीड करना है, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं क्या बात हुई है भाई। डेफिनेशन देखने की ज़रूरत नहीं है, इट इज़ वेरी बेसिक, ठीक है। सेक्शन 3 क्या बोल रहा है, ज़रा फटाफट से ये देखते हैं। इफ़ नोटिस इज गिवन ऑफ अ मोशन फॉर प्रेजेंटिंग एन एड्रेस टू द प्रेसिडेंट प्रेइंग फॉर द रिमूवल ऑफ अ जज साइंड, ठीक है, क्या है भाई, नोटिस इज गिवन फॉर अ मोशन और फॉर प्रेजेंटिंग एन एड्रेस टू द प्रेसिडेंट। तो बेसिकली क्या है, पहले आप लोकसभा या राज्यसभा में स्पीकर या चेयरमैन, स्पीकर लोकसभा का होता है, राज्यसभा का जो हेड होता है वो कौन होता है, दैट इज चेयरमैन, ठीक है, एंड चेयरमैन इज ऑल्सो द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अगर आपने लोकसभा में दिया है देन इट शुड एटलीस्ट बी साइंड बाय हाउ मेनी मेंबर्स, बाय नॉट लेस देन 100 मेंबर्स। तो मिनिमम 100 मेंबर्स होने चाहिए लोकसभा में एंड मिनिमम 50 मेंबर्स होने चाहिए राज्यसभा में। इतने लोगों का मिनिमम रिक्वायरमेंट है फॉर अ नोटिस टू गिवन। तो क्या होता है बेसिकली, आप सबसे पहले नोटिस देते हो, किसको देते हो, आइदर द स्पीकर और द चेयरमैन, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद स्पीकर या चेयरमैन के बाद जब ऐसा नोटिस आएगा जिसकी रिक्वायरमेंट क्या है, मिनिमम 100 और 50, ठीक है, इतने मेंबर्स का उस पर सिग्नेचर्स होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद स्पीकर या चेयरमैन जिसके पास भी है, लोकसभा में भी हो सकता है, राज्यसभा में भी हो सकता है, ठीक है, अगर उनको लगता है कि जो नोटिस दिया गया है उसमें कुछ ना कुछ मटेरियल है, उसमें कुछ ना कुछ सच्चाई है, प्रिमा फेसी ऐसा दिख रहा है कि हाँ आई थिंक हमें इस रिमूवल के नोटिस को देखना चाहिए, कंसिडर करना चाहिए, तो वैसे में क्या होगा, दे विल आइदर एडमिट और रिफ्यूज। तो यहाँ पे डिस्क्रिशन है, किसका डिस्क्रिशन है, चेयरमैन का या फिर लोकसभा के स्पीकर का, उनका डिस्क्रिशन है कि हमें इसको एडमिट करना है कि डिनाई करना है। इफ़ दे डिनाई इट तो वहाँ पे प्रोसेस खत्म हो जाता है, इफ़ दे एडमिट इट तो उसके बाद उनको एक इंक्वायरी कमेटी अपॉइंट करनी पड़ती है अंडर दिस एक्ट, ठीक है। अब देखो सबसेक्शन 2 में यही बात लिखी हुई है, इफ द मोशन इन रेफर्ड इन सबसेक्शन 1 इज एडमिटेड द स्पीकर और एज द केस में बी द चेयरमैन शैल कीप द मोशन पेंडिंग, ठीक है। अब वो मोशन है, मोशन क्या होता है, जब किसी भी हाउस में आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर आप चाहते हो कि वी ऑल मेंबर्स ऑफ दिस हाउस नीड टू डिस्कस दिस मैटर, ठीक है। जैसे पहलगाम अटैक हुआ था, ठीक है, दैट अनफॉर्चुनेट टेररिस्ट अटैक हैपेंड, एंड उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद ऑल द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट ऑब्वियसली वांटेड एन अपडेट फ्रॉम द गवर्नमेंट दैट इतना बड़ा टेररिस्ट अटैक हुआ है, व्हाट एक्शंस इज द गवर्नमेंट टेकिंग। तो गवर्नमेंट ने बताया अपना कि भी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, ठीक है, बहुत सारे डिफेंस स्ट्रैटेजीज उन्होंने क्लियर की कि दीज आर थिंग्स एंड ऑपोजिशन ओके। सो व्हाट वाज हैपनिंग, इट वाज अ मोशन ऑफ डिस्कशन। सो पहले एक जिस भी पार्टी ने, जिस भी मेंबर ने बोला कि वी वांट टू डिस्कस दिस मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, वी आर रिक्वेस्टिंग अ मोशन फॉर दैट, वो मोशन स्पीकर ऑफ द लोकसभा या राज्यसभा में अगर है तो चेयरमैन के पास जाता है, उनको अगर लगता है कि हाँ दिस इज समथिंग दैट वी शुड डिस्कस, उस मोशन को वो एडमिट करते हैं, ठीक है। उसके बाद उसके ऊपर डिस्कशन होता है और उसके बाद उसके ऊपर एक वोटिंग होती है, ठीक है। बट अगर वो एक नॉर्मल सा डिस्कशन है तो ऑब्वियसली उस पर वोटिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। बट अगर कोई वो ऐसा मैटर है जैसे बिल पास होना है, ठीक है, तो वो जब बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है तो बेसिकली एक मोशन इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है, विच इज़ आइदर पास्ड और विच इज़ आइदर नॉट पास्ड, इट फेल्स, ठीक है, ऐसे चलता है। तो यहाँ पे उस मोशन की बात की जा रही है कि हमें इंक्वायरी कमेटी अब बैठानी चाहिए, ठीक है। बट इंक्वायरी कमेटी बैठानी चाहिए क्या, इसका यह मतलब है कि जज रिमूव हो गया, नहीं, बिकॉज दैट मोशन इज स्टिल पेंडिंग। मोशन किस चीज़ का था, मोशन इस चीज़ का था कि हमें प्रेसिडेंट को एक इंस्ट्रक्शन देना चाहिए एज मेंबर्स ऑफ द हाउस, एज द पार्लियामेंट, दैट दिस जज इज गिल्टी ऑन द ग्राउंड ऑफ आइदर मिसबिहेवियर और incapacity and is therefore liable to be removed from his or her position, ठीक है। इस चीज के लिए मोशन, तो क्या ये मोशन पास हो गया, नहीं, यहां पे साफ लिखा हुआ द मोशन इज पेंडिंग, द मोशन इज स्टिल पेंडिंग राइट नाउ। क्यों पेंडिंग है, क्योंकि अभी इंक्वायरी कमेटी बैठी है। इसके बाद क्या होगा,
as soon as maybe for the purpose of making an investigation into the grounds on which the removal of the judge is prayed. ठीक है, अब कमिटी किन लोगों से बनती है, देखो यहाँ पे वो कॉन्स्टिट्यूशन दे रखा है. इट हैज़ टू बी वन जज चोजन. कौन चूज करेगा? जो कमिटी बना रहा है. कौन कमिटी बना रहा है? आइदर द चेयरमैन इज डूइंग इट अगर वो राज्यसभा में हुआ है, और द स्पीकर इज डूइंग इट अगर वो लोकसभा में इनिशिएट हुआ था. ठीक है, ईदर ऑफ देम. तो वन शैल बी चोजन फ्रॉम अमंग द चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. मतलब CJI भी हो सकते हैं प्लस सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी हो सकते हैं. देन इट हैज़ टू बी वन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट्स. कोई भी हो सकता है, राइट. एंड इट हैज़ टू बी वन डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट. किसके ओपिनियन में डिस्टिंग्विश्ड होना चाहिए? वो स्पीकर के होना चाहिए या फिर चेयरमैन के होना चाहिए. ऑब्वियसली जो अपॉइंट कर रहा है, जो इंक्वायरी कमेटी बैठा रहा है. आपको क्या याद रखना है? इनका कॉन्स्टिट्यूशन याद रखना है. 3 लोगों से बनता है. ठीक है, एक इंसान आएगा फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस, एक इंसान आएगा एनी ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट्स इन इंडिया, और एक इंसान आएगा डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट. ठीक है, 3 लोग बनेंगे. अब देखो, अब इसके प्रोवाइजो में एक इंटरेस्टिंग चीज दे रखी है जो इस वाले केस में हुआ भी था. क्या दे रखा है? वेयर नोटिस ऑफ मोशन रेफर टू इन सबसेक्शन 1, दैट इज फॉर द removal of the judge, requesting the president to pass an order for the removal of a judge. ठीक है, are given on the same day in both the houses. इस केस में क्या हुआ था? जस्टिस यशवंत वर्मा के रिमूवल के लिए जो मोशन रिक्वेस्ट डाला गया था, वो राज्यसभा में और लोकसभा में सेम टाइम पे सेम डे पे डाला गया था. ठीक है, तो वैसे में क्या होता है? अब वैसे में कौन अपॉइंट करेगा इंक्वायरी कमेटी? कौन कॉन्स्टिट्यूट करेगा? वैसे में क्या होता है? एक जॉइंट सिटिंग होती है दोनों हाउसेस की, और स्पीकर और चेयरमैन जो है राज्यसभा के, वो दोनों मिलकर एक इंक्वायरी कमेटी बैठाते हैं. ठीक है, अब वो इंक्वायरी कमेटी जब बैठ गई, ठीक है, उसका काम क्या है? उनका काम इंक्वायरी करना. ठीक है, उनके पावर्स क्या होंगे वो आपको सेक्शन 5 में दे रखे हैं. क्या दे रखे हैं सेक्शन 5 में? फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग एनी इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस एक्ट द कमिटी शैल हैव द पावर्स ऑफ अ सिविल कोड विच इज गिवन अंडर CPC. So this is a civil matter, not a criminal matter. देख रहे हो, करप्शन भी हो रहा है उसके बाद भी ये सिविल मैटर ही है, क्रिमिनल मैटर नहीं है. ये कुछ चीज़ें हैं जो जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी इंडिया में प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी को वायलेट करता है. ठीक है, दैट इज समथिंग जो हम कभी और डिस्कस कर सकते हैं. बट अभी यहाँ पे हमें क्या देखना, हमें यहाँ पे क्रिटिकली एनालाइज नहीं करना चीज़ों को, बट देयर आर सम थिंग्स यू नीड टू सी, राइट. वापस से ज़रा आ जाते हैं हम अपने पुराने सेक्शन पे. प्रोवाइडेड फर्दर दैट विद द नोटिसेस ऑफ मोशन as aforesaid are given in the houses of parliament on different dates, the notice which is given later shall stand rejected. ये भी important है आपके लिए. यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो क्लैट कंसोर्शियम अपने एग्ज़ाम में पूछता है. दीज आर वेरी स्मॉल थिंग्स, बट ये हमारी नज़रों से निकल जाता है. ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर एक, मान लो 2 जून को एक नोटिस दिया गया लोकसभा में और 10 जून को दिया गया राज्यसभा में, तो क्या होगा? 2 इंक्वायरी कमेटी बैठेगी? नहीं, दिस विल स्टैंड रिजेक्टेड. क्योंकि जब यहाँ से कमेटी बैठेगी 2 जून में जिस दिन आया, लोकसभा के जो स्पीकर है उन्होंने कमेटी बैठाई, कमेटी अपनी रिपोर्ट दोनों हाउसेस को देगी और दोनों हाउसेस इस पर वोट करेंगे. तभी जाएगा प्रेसिडेंट के पास वो मोशन फॉर द रिमूवल ऑफ द जज, राइट. फिर कमिटी शैल फ्रेम डेफिनेट चार्जेस. चार्जेस के हैं, 2 ही चार्जेस हमारे पास, मिसबिहेवियर का और दूसरा हमारा इनकैपेसिटी का, अगेंस्ट अ जज ऑन विच द इन्वेस्टिगेशन इज प्रपोज टू बी हेल्ड. ठीक है, चार्जेस कमिटी बनाती है, स्पीकर या चेयरमैन नहीं बनाते हैं. Such charges together with a statement of the grounds on which each charge is based shall be communicated to the judge. Again, principles of natural justice. आपके अगेंस्ट किस चीज़ का केस फाइल हो आपको पता तो होना चाहिए. हमने क्रिमिनल प्रोसीजर में भी पढ़ा है ना कि FIR फाइल होती है तो अक्यूज के पास FIR की कॉपी होनी चाहिए, सेम चीज़. And he shall be given a reasonable opportunity of presenting a written statement of defense within such time as may be prescribed on behalf of the committee.
ठीक है, तो आपको बेसिकली आपकी चार्जशीट मिल गई है, चार्जशीट की कॉपी मिल गई, आपके अगेंस्ट ये चार्जेस फ्रेम आपके अगेंस्ट ये चार्जेस फ्रेम किए जा रहे हैं, राइट। और उसके बाद क्या, उसके बाद आपको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, बिकॉज प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस अप्लाई होगा यहाँ पे। प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस हमेशा अप्लाई होता है, उसके एक्सेप्शंस नहीं है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कोई एक्सेप्शन अप्लाई नहीं हो रहा है। तो एन अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड का कॉन्सेप्ट जो है, जो प्रिंसिपल है, वो यहाँ पे एप्लीकेबल होगा, ठीक है। अच्छा, सिंस ये सब सेक्शन हम स्किप कर सकते हैं, द पॉइंट यहाँ पे क्या है कि अगर इनकैपेसिटी है, राइट, इनकैपेसिटी के केस में क्या होगा, आपको एक मेडिकल रिपोर्ट चाहिए होगी, राइट, तो आप एक मेडिकल बोर्ड के पास जाओगे और उनसे रिपोर्ट बनवाओगे। ये जो मेडिकल बोर्ड होगा, ये कौन बनाएगा, ये खुद वेर इज इट, हाँ ये रहा, मेडिकल बोर्ड एज मे बी अपॉइंटेड फॉर द पर्पस बाय द स्पीकर और द चेयरमैन, ठीक है। तो जिसने कमेटी बनाई है, मेडिकल बोर्ड भी वही बनाएगा। द पॉइंट इज मेडिकल बोर्ड की ज़रूरत इनकैपेसिटी के केस में ही आएगी, जहाँ पे आपको लग रहा है कि उस जो जज हैं उनकी मेडिकल कंडीशन उनको अलाउ नहीं कर रही है फॉर हिम टू बी एबल टू परफॉर्म हिज और हर ड्यूटीज़, राइट। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे एप्लीकेबल होगी। अल्टीमेटली क्या होगा, रिपोर्ट ऑफ द कमेटी आएगी, ठीक है, रिपोर्ट ऑफ द कमेटी आएगी, फिर क्या होगा भाई, रिपोर्ट में क्या होगा, एट द कंक्लूजन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन द कमेटी शैल सबमिट इट्स रिपोर्ट टू द स्पीकर और द चेयरमैन एज द केस में बी, स्टेटिंग इट्स फाइंडिंग्स ऑन ईच ऑफ द चार्जेस सेपरेटली विद सच ऑब्जर्वेशन एज द होल केस एज इट थिंग्स फिट। रिपोर्ट दे दिया आपने, ठीक है। अब देखो, अब हमारा सेक्शन 6 आता है। अब उस रिपोर्ट का क्या होगा, देखो रिपोर्ट दो तरीके की हो सकती है, एक पॉजिटिव रिपोर्ट या नेगेटिव रिपोर्ट, जैसे हमारी एफआईआर में भी होता है। एफआईआर फाइल होने के बाद क्या होता है, चार्जशीट आती है, चार्जशीट या तो पॉजिटिव चार्जशीट होती है, नेगेटिव चार्जशीट होती है, राइट। कुछ सिमिलर तरीके की, आइडियोलॉजी सेम है, माई पॉइंट इज आइडिया सेम है, द वर्ड्स आर नॉट सेम एंड ऑब्वियसली द प्रोसीजर्स आर नॉट सेम हियर एंड इन द क्रिमिनल प्रोसीजर, ठीक है, बट आइडिया सेम है। If the report of the committee contains a finding that the judge is not guilty, ठीक है, of misbehavior or does not suffer from any capacity, then no further steps shall be taken in either house of the parliament, और वहाँ पे वो procedure ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन if the report contains a finding that the judge is guilty of any misbehavior or suffers from any incapacity, ठीक है, फिर उसके बाद देन द मोशन रेफर टू इन सबसेक्शन 1 और सेक्शन 3, मतलब वही मोशन जो प्रेसिडेंट को प्रेजेंट करना है उसके लिए, ठीक है, शैल टुगेदर विद द रिपोर्ट ऑफ द कमिटी बी टेकन अप फॉर कंसिडरेशन बाय द हाउस और द हाउसेज इन विच इट इज़ पेंडिंग, ठीक है। तो अगर लोकसभा में हुआ था तो लोकसभा उसके ऊपर वोट करेगा, फिर राज्यसभा में जाएगा, अगर राज्यसभा में हुआ तो फिर लोकसभा में आएगा, और अगर दोनों में हुआ तो दोनों साथ में होगा, ठीक है। इफ द मोशन इज अडॉप्टेड, ठीक है, इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ क्लॉज 4 ऑफ आर्टिकल 124, ठीक है, या फिर आर्टिकल 218, और 218 में वापस 214 पे आना आपको, सॉरी 124 पे आना आपको, देन द मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी ऑफ द जज शैल बी डीम्ड टू हैव बीन प्रूव्ड, ठीक है। एंड देन योर द हाउस, बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, वो जैसे ही मोशन पास होगा सेकेंड हाउस में, वो ऑटोमेटिकली प्रिज्यूम कर लिया जाएगा कि जज वॉज गिल्टी, ठीक है, एंड it will be a basically prayer to the President of India to remove that judge, right? So this is what this act says. Let us now come to removal of judges. एक बार ज़रा प्रोसीजर देख लें, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले नोटिस आएगा, ठीक है, you have to give a notice to either the chairman or the speaker, जिसमें क्या है, it is minimum 50 for राज्यसभा और 100 for लोकसभा। नोटिस पास हो जाने, नोटिस जब ये चला गया तो स्पीकर और चेयरमैन विल अपॉइंट अ इंक्वायरी कमिटी, ठीक है। फिर इंक्वायरी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट देंगी, ये रिपोर्ट कंसिडरेशन के लिए आएगा दोनों हाउसेस में, दैट इज़ वोटिंग होगी,
वोटिंग कैसे होनी चाहिए? मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबर्स एंड 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। और उसके बाद प्रेसिडेंट का ऑर्डर आएगा, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। अगर आपको कभी क्वेश्चन आए कि जजेस का रिमूवल कैसे होता है, द आंसर इज बाय द ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, एक्चुअली द आंसर इज ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट, बट वो ऑर्डर कैसे आता है उसका प्रोसीजर ये दे रखा है। क्लियर यहाँ तक? आई होप आई एम वेरी मच क्लियर। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, समझ में आ रहा हो। अगर आपको पसंद आ रहा है और अभी तक आपने लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू दैट, राइट। नाउ इन हाउस प्रोसीजर की बात करते हैं। नाउ देयर इज समथिंग इन हाउस प्रोसीजर जो सुप्रीम कोर्ट इनिशिएट करता है, इस केस में भी हुआ था। दिस इज़ बेसिकली एन इन हाउस मैकेनिज्म। ठीक है, ये एक इन हाउस मैकेनिज्म है और ये इस केस में आया था। ये केस आपको याद रखना है, राइट। ये केस आपको याद रखना है, सी रविचंद्रन अय्यर वर्सेस जस्टिस AM भट्टाचार्य 1995 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है। इसमें एक फ्रेज बोला गया था, यॉनिंग गैप, ये याद रखना आप। ठीक है, क्लैट की आदत है इस तरह की फ्रेज, ये फ्रेज कौन से जज ने बोला था, कौन से केस में बता दो, ये आदत है क्लैट की पूछने की। ठीक है, सो डू दैट। दिस डिसीजन इज the decision noted that it is a mechanism to fill in the yawning gap between proved misbehavior and bad conduct inconsistent with the high office। इस केस में ये इन हाउस प्रोसीजर इस्टेब्लिश किया गया, जिसमें बेसिकली क्या है बोला गया है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो एक कमिटी, एक इन हाउस कमिटी बनाएंगे जो इन हाउस इंक्वायरी कंडक्ट करेगा, एंड दिस इज सेपरेट फ्रॉम द इंक्वायरी कमिटी जो जजेस इंक्वायरी एक्ट में आता है। सो दिस इज बिकॉज इन हाउस इंक्वायरी, ये जो इन हाउस प्रोसीजर है, इसका ना इफेक्टिव मैकेनिज्म नहीं है। एज इन आप इसको कैसे इफेक्ट में लाओगे? मान लो इन हाउस इंक्वायरी आई, इंक्वायरी हुई एंड इन हाउस कमिटी ने बोला कि हाँ दिस एंड दिस जजेस क्या बोलते हैं, गिल्टी। अब इसके बाद यू कैन नॉट गो टू द प्रेसिडेंट बिकॉज ये कॉन्स्टिट्यूशन के में नहीं लिखा हुआ है, राइट। तो कोई प्रेसिडेंशियल ऑर्डर नहीं आ सकता। तो इसमें क्या होता है, इन हाउस प्रोसीजर ये इसलिए किया जाता है, बेसिकली जजेस ने अपनी रेप्यूटेशन बचाने के लिए, उन्होंने जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी के प्रिंसिपल को सो कॉल दिखाने के लिए ये इन हाउस प्रोसीजर लेके आए थे 95 में, बट ये उतना इफेक्टिव नहीं है बिकॉज इसके बाद अगला स्टेप होता है, आप उस जज को बेसिकली एडवाइज करते हो। द CJI ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एडवाइजेज टू रिजाइन। इस केस में भी हुआ था। इस केस में जस्टिस शील नागू, जस्टिस GS संधावालिया एंड जस्टिस अनु शिवरमन, इन तीनों की एक इन हाउस कमेटी बनी थी। CJI संजीव खन्ना जी ने, किसने किया था ये आपको याद होना चाहिए, तीनों मेंबर्स के नाम याद होने चाहिए, इनके डेजिग्नेशंस याद होने चाहिए आपको। ठीक है, एक जस्टिस चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, Justice Sandhawalia is from Chief Justice of Himachal Pradesh and Justice Anu Sivaraman is from Karnataka. He is a judge there. ठीक है, तो ये एडवाइस दिया गया था और उसके बाद जस्टिस यशवंत ने मना कर दिया। अब इसके बाद कोई मैकेनिज्म नहीं, कोई इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म नहीं है इसके बाद। ठीक है, इसीलिए आपका कॉन्स्टिट्यूशनल इंक्वायरी कमेटी हैज़ अ इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म, बट यहाँ पे नहीं है, राइट। सो इस वीडियो में हमें यही पढ़ना था। आई होप आपको इन हाउस प्रोसीजर और कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोसीजर है उसमें डिफरेंस समझ में आए हो। आई होप ये केस लॉ आपको याद रखना है। आई होप आई वाज एबल टू टेल यू सारी चीज़ें A to Z आपको चीज़ें समझ में आई हो। ठीक है, you can read more about, I would definitely advise you, this is not an exhaustive video, no one can ever give you exhaustive study material or a video or anything। ठीक है, this is something जो मैंने आपको शॉर्ट में बताया है। ठीक है, इसके अलावा डेफिनेटली गो आउट एंड रीड अबाउट इट, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक और मैं ऐसे ही वीडियोज़ और लाता रहूँगा। ठीक है, बट आपको ये अगर इस तरह के वीडियोज़, ये हम लाइव लेक्चर्स करने वाले हैं, 10th जून से मेरा बैच स्टार्ट हो रहा है, हम ये लाइव लेक्चर्स करने वाले हैं। ऐसे ही क्लासेस में हम डिस्कशंस करेंगे। ठीक है, जहाँ पे आप डाउट्स पूछ सकते हैं। तो दिस इज समथिंग, मैं यहाँ पे ऑब्वियसली सिलेक्टेड वीडियोस ला सकता हूँ, वहाँ पे हम 50-100 टॉपिक्स ऐसे डिस्कस करेंगे, प्लस हम वहाँ पे
सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, क्रिमिनल लॉ, इसमें आईपीसी, एविडेंस एक्ट, क्रिमिनल प्रोसीजर, सारी चीज़ें हम डिटेल में A to Z डिस्कस करेंगे जो क्लैट पीजी में पूछा जाता है। तो एक तरफ हम सिलेबस कवर करते जाएंगे टॉपिक वाइज, और एक तरफ हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड जजमेंट्स के क्लासेस करेंगे। दोनों चीज़ें पैरेलली चलेंगी, ठीक है। अलॉन्ग विद दैट हमारे पास प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कशंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, लाइव टेस्ट, मॉक क्विजेस, ये सारी चीज़ें वहाँ पे होंगी, ठीक है। तो अगर आपको लगता है दैट इट विल बी यूजफुल टू यू एंड यू वांट टू क्रैक क्लैट पीजी, you can definitely reach out to me on my mobile number यहाँ 9205265919, ठीक है। ये मैंने आपको वीडियो पीछे करके आप देख सकते हैं, मैंने वहाँ पे भी लिखा है और डिस्क्रिप्शन में भी मैं ये डाल दूँगा, ठीक है। अब कुछ फटाफट से क्वेश्चंस कर लेते हैं। 5 क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अंडर आर्टिकल 124 क्लॉज फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस बाय एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट। ट्रू। Which of the following correctly describes the majoritarian requirement in each house of the parliament for passing such an address? A simple majority of the total membership of that house and a majority of not less than 2/3 of the members of that house present and voting. Seems right, ठीक है। फिर ऑप्शन बी है मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस एंड मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ दैट हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये भी ठीक लग रहा है। मेजॉरिटी ऑफ 2/3 गलत, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ऑफ हाउस प्रेजेंट वोटिंग गलत। ये ऑप्शंस गलत हैं, हमें कन्फ्यूजन इसमें और इसमें हो रहा है, ठीक है। ज़रा डिफरेंस देखते हैं दोनों में क्या है। आपको याद रखना है क्लैट पीजी में जो ऑप्शंस दिए रहते हैं वो बहुत सिमिलर रहते हैं। आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो होता है वो सेलेक्ट करना होता है। यहाँ पे लिखा है सिंपल मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप, यहाँ पे लिखा है मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप। दोनों में डिफरेंस आ रहा है बिकॉज ये जो ऑप्शन बी है ये एग्जैक्टली 124 क्लॉज 4 में जो लिखा हुआ है वही चीज़ लिखी हुई है, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन बी रहेगा, ठीक है। हमारा आंसर ऑप्शन बी रहेगा। क्वेश्चन 2, द जजेस इंक्वायरी एक्ट ऑफ 1968 regulates the procedure for the investigation and proof of the misbehavior or incapacity of a judge. If a removal motion is admitted in the Lok Sabha, the speaker constitutes a 3-member judicial committee. Section 3 में आपको दे रखा है, who among the following cannot be a member of this committee? A chosen Supreme Court judge, a chosen Chief Justice of the High Court, Union Minister of Law and Justice, a distinguished jurist in the opinion of the Speaker. Section 3 में साफ साफ दे रखा है, ये होते हैं, ये होते हैं, ये होते हैं। यूनियन मिनिस्टर नहीं होता, देयर इज नो रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। सो द आंसर इज ऑप्शन सी। यहाँ पे पूछा है कैन नॉट, ऑप्शन सी। इसका भी ध्यान रखेंगे, कहाँ पे कैन पूछा है, कहाँ पे कैन नॉट पूछा है, ठीक है। कहाँ पे नेगेटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, इसका ध्यान रखेंगे। बहुत सारी गलतियाँ होती हैं ऐसे, और ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है विद नेगेटिव मार्किंग, तो यहाँ पे 0.25 मार्क्स से भी आपका रैंक 100 ऊपर नीचे हो सकता है। पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ मैं आपको ये। क्वेश्चन 3, द ग्राउंड ऑफ प्रूव मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी इज एसेंशियल फॉर द रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जज. Which of the following statements is correct regarding the definition of misbehavior under the Constitution of India? It is exhaustively defined under 124 clause 5, defined under Judges Inquiry Act, not defined in the Constitution or the Judges Inquiries Act, and is interpreted judicially, or it is defined under General Clauses Act of 1897. मैंने आपको बताया था ये दो ऐसे वर्ड्स हैं जो कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया हुआ, ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के बेसिस पे डिसाइड होता है। देयरफॉर द आंसर इज ऑप्शन सी। Question 4. Consider the following statements regarding the life of a removal motion against a judge. A motion signed by 100 members in the case of Lok Sabha or 50 members in the case of Rajya Sabha is delivered to the speaker or the chairman. ठीक है, if the Lok Sabha is dissolved before the motion is voted upon, the motion lapses immediately. Which of the following statements above is or are correct? देखो ऑप्शन 1 तो डेफिनेटली करेक्ट है, ऑप्शन 2 डाइसी लग रहा है, तो मैं आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, ठीक है। लोकसभा अगर डिसॉल्व हो जाती है जिस समय मोशन दिया गया था, तो वो इमीडिएटली लैप्स नहीं करता है, ठीक है। इसका एक जजमेंट है जो मैं नहीं बताऊंगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ढूंढ के खुद बताएंगे, ठीक है। ये एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में डिस्कस किया है, 90s का जजमेंट है, ठीक है। इसलिए द आंसर इज ओनली 1, राइट, इट डज नॉट लैप्स।
by virtue of which constitutional provision is the procedure for the removal of a high court judge made identical to that of a supreme court judge. 214, 217, 227 or 124 clause 5. The answer is, देखो 214 में क्या बात की गई है, हाई कोर्ट होगा हर स्टेट का, ये बात की गई है. 217 भी हाँ 217 भी इज योर आंसर जहाँ पे बात की गई है. 227 बात करता है सुपर इंटेंडेंस ऑफ हाई कोर्ट. अगर मैं गलत हूँ तो यू आर गोइंग टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो, मुझसे भी गलती हो सकती है. सुपर इंटेंडेंस ऑफ हाई कोर्ट ओवर द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स. और 124 क्लॉज 5 क्या बात करता है, दैट द पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू मेक लॉ रिगार्डिंग द इंक्वायरी ऑफ द जजेस प्रूव्ड मिसबिहेवियर और मिसकॉन्डक्ट. ठीक है, सो द आंसर इज 217B. सो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो. आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा. मेक श्योर लाइक सब्सक्राइब टू माई चैनल. और आपको कुछ भी डाउट्स आता है या फिर आपको अप्रिशिएट करना हो तो प्लीज़ पुट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो. आपको अगर मेरा कोर्स ज्वाइन करना है तो उसके लिए डिटेल्स मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ. ये यहाँ पे सारी डिटेल्स हैं. इट्स गोना बी वेरी चीप एंड गोना बी वेरी अफोर्डेबल फॉर यू ऑल. ठीक है, हम 10th ऑफ जून मतलब आज मंडे है, वेडनेसडे से स्टार्ट करने वाले हैं. ठीक है, सो मेक श्योर यू इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन